Good morning, sir. 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 Anna. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir, your mic is mute. Good morning, sir. Sir, your mic is mute. Sir, your mic is mute. Kitchen corner there for the put away. Look at that. John's with a little bit of a fist bump there. Recently, yeah. You okay? And that's it. Element. Both these gentlemen have had a little bit of fitness issue in their history. Tyson more so because he is. Fist bump. That was amazing. Pro level only though. Nice ball. Amazing photographer to the US Open over the years. What a reach. Oh. Tight up at the net. आपको मैंने डबल बाउंस का रूल बताया था। सर्विस करने के बाद देखो दोनों कोर्ट पे सिंगल सिंगल बाउंस होता है, उसके बाद में वॉली स्टार्ट कर सकते हैं। देखो सर्विस हो गया, बाउंस होने के बाद अपोनेंट ने मारा भी बाउंस होने, अभी ये फुल टॉस खेल सकते हैं। तो ये था सिंगल्स का मैच। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक डबल्स का मैच 2 to 3 मिनट्स का, वो भी मैच हम देखेंगे। उसके बाद में हम लोग हमारे आज के सेशन को शुरुआत करेंगे। तब तक जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। She has the touch, she has the reception. The stage in Margarita. It's amazing what the stage. And I was smile. 5 tournaments this year already, Drew, and the 2 she did win. डबल्स का मैच है। 2 events, so it wasn't possible. She was upset in singles 6 days ago on Sunday by Irina Terashenko in Chad. She comes in here today with maybe a little chip on her shoulder. Yeah, Smalley judging definitely doesn't like to be beaten. She watches a lot of video and she watches the matches that she loses in.
She knows that she plays well when she wins, but पिकल when बॉल she जो loses, है she wants to वो find out what दो went कैटेगरी में खेला जाता है, wrong. सिंगल्स एंड डबल्स. So definitely coming back in with something to prove. There was a little bit of talk after that loss in singles of, is she still at the top of her game? So yeah, she's going to come out. She's going to be aggressive herself, and she's definitely got something to prove. Well, she just wasn't feeling well, so she finally showed us this week she's human, which is something we've all questioned. How about Callie Smith? Big time forehand. Now second serve coming up. And just to talk a bit about the Kovalova and Jarjin partnership, in the tournaments that they've played, 10 of them have not lost a tournament. What does that tell you about that duo? Incredible. 2-1. And just a little bit wide that time from Lucy Kovalova. Callie Smith, very talented. Also sings, plays the piano. She cooks, she bakes. Tremendous also in the gym. Physical fitness is huge in her world, as you can tell. And she started playing tournaments in 2018. She played her first U.S. Open in 2019 with Christine McGrath, making it all the way to the match just. Okay. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बॉडी कंपोजिशन टॉपिक जो था उसमें बीएमआई और वेस्ट हिप रेशो सीखा था. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप असाइनमेंट मतलब होमवर्क भी दिया था. आपको खुद का बीएमआई एंड WHR वेस्ट टू हिप रेशो या वेस्ट हिप रेशो कैलकुलेट करना है. तो हरीश आप खुद को अनम्यूट करो. हरीश बताओ, आप वेस्ट हिप रेशो का मुझको फॉर्मूला बताओ. हरीश ओके. रफत आप बताओ फॉर्मूला. रफत आवाज नहीं आ रहा है आपका. यस. हेलो हेलो हाँ निशांत बोलो. सर, circumference of waist upon circumference of hip. ओके, आपने कैलकुलेट किया है वेस्ट हिप रेशो. यस सर. क्या आंसर आया है? Sir, my circumference of waist hip ratio is 21. I comes in ideal weight. ओके. सिद्धांत कांबळे आप खुद को अनम्यूट करो और मुझको बीएमआई का फॉर्मूला बताओ. Sir, BMI is equals to weight upon height. राइट. आपने बीएमआई कैलकुलेट किया है? यस सर, मैंने कैलकुलेट किया था पर मेरा हाइट इतना प्रॉपर पता नहीं ना. लॉकडाउन में डॉक्टर के पास जाते हैं तभी तो वेट पता चलता है. घर पे भी हम लोग हाइट चेक कर सकते हैं, लेकिन आप नेक्स्ट लेक्चर तक आप खुद का हाइट चेक करके बीएमआई कैलकुलेट करके रखो. ठीक है. तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं. उसका नाम है
THR, टारगेट हार्ट रेट। Heart rate. It is essential to know the method to determine target heart rate, which is an indicator of cardiovascular fitness of an individual. इंसान का कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जानने के लिए ये जो टेस्ट है टारगेट हार्ट रेट, ये जो टेस्ट है इसके जरिए हम लोग कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किसी भी इंसान का जान सकते हैं। Formula used to calculate THR is very simple. For this, first find out your maximal heart rate, जिसको कहते हैं MHR, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है MHR, और उस मैक्सिमल हार्ट रेट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है MHR। THR जानने के लिए उसके पहले हम लोगों को कुछ अलग अलग मैक्सिमल हार्ट रेट, फंक्शनल हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट ये जानने जरूरी रहते हैं। तो वो जानने के लिए भी कुछ फॉर्मूला दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना है MHR, मतलब मैक्सिमल हार्ट रेट। मैक्सिमल हार्ट रेट जो है कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। उसका फॉर्मूला है मैक्सिमल हार्ट रेट इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय करंट एज। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन है, उसका एज जो है, यदि उसका एज 50 है तो उसका मैक्सिमल हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 220 माइनस 50, उसका करंट एज क्योंकि 50 है, तो जो आंसर आता है वो उसका रहेगा मैक्सिमल हार्ट रेट, जिसका आंसर आएगा 170। तो मैक्सिमल हार्ट रेट कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रेस्टिंग हार्ट रेट कैलकुलेट करना। रेस्टिंग हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। रेस्टिंग हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए अर्ली मॉर्निंग आपका जो पल्स है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पल्स कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबको मेरा रिस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रिस्ट पे आपको कहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको अभी, कि रिस्ट जो है आपका रिस्ट, उसका इनसाइड, ये जो मेरा रिस्ट है इसका इनसाइड थंब के थोड़ा सा नीचे, यदि आप जो आपके ये जो 3 फिंगर्स है यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लाइटली प्रेस करते हो तो आपको ना कुछ बीट दिखाई देगी, कि बीट्स जो है वो आपको महसूस होगी। तो वो बीट्स आपको काउंट करने हैं। तो कितना, 30 सेकेंड्स तक वो बीट्स काउंट करने हैं। 30 सेकेंड्स आपने काउंट किए बीट्स, और वो बीट्स फॉर एग्जांपल आए 35, तो उसको आपको डबल करना है। तो 35 का डबल कितना होता है, 70। तो आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो है 70। नहीं तो सेकेंड क्या है, आप पूरा 1 मिनट तक काउंट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे आपको मेरा रिस्ट दिख रहा है, रिस्ट के ये जो रिस्ट है इसका इनसाइड यहाँ पे ये जो आपका थंब है उसके थोड़ा सा नीचे आपको ये जो 3 फिंगर्स है आपके, उसको थोड़ा सा हल्के से प्रेस करना है वहां पे, तो आपको ना बीट्स महसूस होगी। तो वो बीट्स महसूस होने के बाद आपको बीट्स काउंट करने हैं टाइम लगा के। एक तो आपके पास 2 ऑप्शन, एक तो पूरा 1 मिनट तक आप बीट्स काउंट करो या 30 सेकेंड्स तक काउंट करके उसको डबल करो। सेकेंड मेथड ऐसी है कि अभी क्या है, कोरोना था, इसके लिए मैक्सिमम लोगों के घर में एक छोटा सा मशीन है सबके घर में, उसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर पे भी आपको पल्स आपके मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद आपको वो पल्स काउंट करने पड़ेंगे। तो रेस्टिंग हार्ट रेट कैलकुलेट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट फंक्शनल हार्ट रेट, FHR आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है FHR कैलकुलेट करने के लिए, फंक्शनल हार्ट रेट इज इक्वल टू मैक्सिमल हार्ट रेट, मतलब MHR जो हम लोगों ने काउंट किया था 220 माइनस करंट एज, माइनस उसमें से क्या माइनस करना है, रेस्टिंग हार्ट रेट जो हम लोगों ने पल्स काउंट किए थे रेस्ट करने के बाद।
एक तो अर्ली मॉर्निंग आप काउंट करो या रेस्ट लेने के बाद ही, सफिशिएंट रेस्ट लेने के बाद आप वो रेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो फंक्शनल हार्ट रेट जो है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फंक्शनल हार्ट रेट इज इक्वल टू MHR मतलब मैक्सिमल हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट RHR, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो आपको ये कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा फंक्शनल हार्ट रेट। फंक्शनल हार्ट रेट आपको मिल गया, मैक्सिमल हार्ट रेट मिल गया, रेस्टिंग हार्ट रेट मिल गया। ठीक है, जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग मतलब क्या है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी गेम जो प्रैक्टिस करते हो, उस वक्त आपका THR जो है, आपका जो सॉरी जब भी आप लोग ट्रेनिंग जोन में रहते हो, प्रैक्टिस सेशन करते हो, तभी आपका हार्ट रेट जो है वो 60 to 80% ऑफ योर MHR मतलब मैक्सिमल हार्ट रेट जो है आपका। फॉर एग्जांपल किसी इंसान का मैक्सिमल हार्ट रेट जो है 170 है, तो 170 का 60 to 80% ही उसका ट्रेनिंग जोन में हार्ट रेट होना चाहिए। आने वाले स्लाइड में हम लोग एक एग्जांपल भी देखने वाले हैं। Now to determine your target heart rate और THR use the formula as follows। हम लोग को अभी THR कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला कौन सा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, लोअर लिमिट ऑफ THR टारगेट हार्ट रेट जो है उसका लोअर लिमिट आपको कैलकुलेट करने के लिए FHR into 60% प्लस RHR। आप लोगों ने फंक्शनल हार्ट रेट कैलकुलेट किया है, आपके पास उसका आंसर है, उसको मल्टीप्लाई करना है 60% से और उसमें ऐड क्या करना है, रेस्टिंग हार्ट रेट RHR कैलकुलेट करना है। और अपर लिमिट जो है THR का वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, FHR into 80% प्लस RHR। हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एज जो है वो 15 इयर्स है, तो आपका MHR मतलब मैक्सिमल हार्ट रेट कितना रहेगा, 220 माइनस 15 इज इक्वल टू 205। 205 आपका MHR है। फ्रॉम दिस फॉर एग्जांपल आपका RHR जो है रेस्टिंग हार्ट रेट वो है 60, हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, उसमें से माइनस करना है 60। तो फंक्शनल हार्ट रेट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, MHR माइनस मतलब मैक्सिमल हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब MHR माइनस RHR। तो आपका MHR जो है 205 है, उसमें से आपने RHR रेस्टिंग हार्ट रेट 60 माइनस किया, तो आपका हार्ट रेट जो है वो उसका आंसर आएगा 145। अभी हम लोग इसका THR मतलब टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसका लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या दिया है, FHR फंक्शनल हार्ट रेट, किधर है फंक्शनल हार्ट रेट आपका 145, तो हम लोगों को 145 लिखना है इनटू 60%। देखो यहाँ पे दिया है FHR इनटू 60% प्लस RHR। तो FHR हम लोगों ने लिखा है फंक्शनल हार्ट रेट 145 इनटू 60% प्लस 60 क्या है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है RHR, तो उसका आंसर आता है 147। अपर लिमिट ऑफ THR कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो FHR जो है फंक्शनल हार्ट रेट इनटू 80% प्लस RHR मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट आपका जो है 60, वो तो 145 इंटू 80% प्लस 60 उसका आंसर आता है 176। यहां तक यदि किसी को कुछ भी डाउट है टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेशन में, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। हेमाक्षी, आपको कुछ डाउट है? यस सर, सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों कैलकुलेट करना है। यस, दोनों कैलकुलेट रहता है। वो जो दो लिमिट रहती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसके मतलब लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट के बीच में ही आपका THR रहना जरूरी है। जब भी ट्रेनिंग जोन में आप रहते हो तभी उसके दौरान ही आपका THR होना जरूरी है। जब भी आप लोग ट्रेनिंग करते हो या कोई फिजिकल वर्कआउट करते हो, जो भी कुछ करते हो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, उस दौरान आपका THR जो है उसी दौरान आपका रहना जरूरी है। इसके अलावा और कुछ डाउट है? नो सर, थैंक यू। सर्वेश, बताओ आप, आपको क्या डाउट है? Sir, my network problem was there, so I didn't understand.
ओके, तो फिर से रिपीट करूं मैं, अभी नेटवर्क प्रॉपर है आपके पास? हाँ। THR कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमल THR हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को MHR कैलकुलेट करना पड़ता है। MHR मतलब मैक्सिमम हार्ट रेट, उसका फॉर्मूला है 220 माइनस योर करंट एज। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए जिसका हम लोग MHR मतलब टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर्सन का एज 15 है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो MHR कैलकुलेट करने के लिए आपको 220 माइनस करंट एज 15 जो है वो माइनस करना है, तो आपका MHR रहेगा 205। उसके बाद में आपको क्या करना है, रेस्टिंग हार्ट रेट जो रहता है, मैंने कहा था आपको क्या करना है, आपके पल्स काउंट करने हैं। अर्ली मॉर्निंग आपको पल्स कैलकुलेट करने हैं, वो आपका रहता है रेस्टिंग हार्ट रेट। तो रेस्टिंग हार्ट रेट हम लोगों ने 60 है ऐसा एज्यूम किया है। तो फंक्शनल हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला दिया है MHR मैक्सिमल हार्ट रेट जो है 205 माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट जो है 60। तो 205 माइनस 60 आंसर आता है 145। तो हमारा फंक्शनल हार्ट रेट जो है वो है 145। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे THR टारगेट हार्ट रेट, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी लोअर लिमिट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, FHR फंक्शनल हार्ट रेट इंटू 60% प्लस RHR मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट, ये फॉर्मूला है। तो हमारा FHR क्या है 145 इंटू 60% प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट 60, तो उसका आंसर आता है 147। तो लोअर लिमिट ऑफ THR टारगेट हार्ट रेट क्या आ जाएगा 147। अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है लेकिन 60% की जगह 80% लिखा है। फॉर्मूला ऐसा होता है फिर 140 FHR मतलब फंक्शनल हार्ट रेट इनटू 80% प्लस RHR मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट। तो हम लोग फॉर्मूला में फिगर पुट आउट करते हैं, हमारा FHR जो है 145 है इनटू 80% प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट हमारा 60 है, तो उसका आंसर आता है 176। तो हम लोगों को THR का लोअर लिमिट भी मिल गया, वो है 147 और अपर लिमिट जो है वो है 176। इस तरीके से हम लोग टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया अभी? ओके। उसके बाद में कहने सौम्या सिंह, यस आपको कुछ डाउट है? हाँ शुभम बताओ, कुछ प्रॉब्लम है आपको? शुभम सर, हाँ सर्विस म्यूट में है Sir, बोलो। good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, can you share the screen again from starting? I want to take screenshot as my network issue was there. ओके ओके, तो मैं जैसे सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे मैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते। Okay, sir. Thank you. हर्षिल आपको कुछ डाउट है? शुभम खुद को म्यूट कर लो, यस हो गया म्यूट। हेलो हाँ बोलो हर्षिल। सर, आपने बोला था कि अपना होमवर्क को फाइल में लिखना है, तो हम बुक में लिख सकते हैं क्या? बुक में मत लिखो आप, पेपर मतलब पेपर और फाइल लेके ही लिखो, ठीक है? ओके तो सर। प्लेन पेपर रहते, क्योंकि आपको ना कुछ जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ गेम्स भी है आपके लिए, तो गेम्स के आपको डायग्राम भी निकालने हैं, तो उसके लिए प्लेन पेपर पे आपके होमवर्क कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि लाइंस रहेंगे तो ग्राउंड मार्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा ड्राइंग इसके लिए। ओके सर। सौम्य सिंह आपको कुछ डाउट है? Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, I didn't understood how to find rest heart rate. रेस्टिंग हार्ट रेट, ओके। Yes, sir. RHR कैलकुलेट करने के लिए आपको जब भी कैलकुलेट करना है तभी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो क्या है जो पल्स ऑक्सीमीटर रहता है वो जो है वो आप आपके फिंगर को अटैच करके चेक कर सकते हो आपका ये क्या है। यदि पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है किसी के पास तो मेरा रिस्ट दिख रहा है आपको, अभी मैं आपको रिस्ट दिखा रहा हूँ। Yes, sir.
तो ये मेरा पूरा रिस्ट है, तो रिस्ट का जो इन साइड है मतलब ये साइड, ये थंब के नीचे यहाँ पे हम लोग जो हमारे 3 जो फिंगर्स है उसको यहाँ पे स्लाइसली प्रेस करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को कुछ बीट्स जो है वो महसूस होते हैं। तो आपको क्या करना है, टाइम लगाना है, 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा सकते हो या 1 मिनट का, और काउंट करने हैं कितने बीट्स हो रहे हैं। तब काउंट करने हैं सुबह जब भी तुम लोग उठते हो तभी आपको रेस्टिंग हार्ट रेट मिलेगा। तो ये Yes, sir. कितने बीट्स रहते हैं पर मिनट में, वो जो मिनट्स में के जो बीट्स रहते हैं, 1 मिनट में कितने बीट्स होते हैं, वो जो बीट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल वो फिगर आती है 70, तो वो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो 70, यदि 60 आता है तो वो 60, 65 आता है तो 65, वो है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट। अंडरस्टूड? Thank you, sir. मुझको लग रहा है यहाँ पे सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। मैं अभी फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हो। फर्स्ट स्लाइड ये है टारगेट हार्ट रेट की। सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। आपको होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क का जो स्लाइड है उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे। क्या करना है आपको, कैलकुलेट फंक्शनल हार्ट रेट, लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ टारगेट हार्ट रेट, ये आपको होमवर्क दिया है। उसके लिए आपको एज दिया है 35 इयर्स। जो पर्सन है जिसका आप लोगों को THR और फंक्शनल हार्ट रेट कैलकुलेट करना है, उसका एज जो है वो है 35 इयर्स, और उसका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है RH वो है 75। तो आपको आने वाली नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर है उसके पहले आपको ये कैलकुलेट करना है फंक्शनल हार्ट रेट एंड लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ टारगेट हार्ट रेट। उसके लिए आपको दिया है एज जो है वो है 35 इयर्स, और रेस्टिंग हार्ट रेट जो है RH वो है 75। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट, आपको इसको होमवर्क एक तो आप नोट डाउन करके लो आपके पास जो पेन पेपर है उसके ऊपर, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको कहा था कि आप सिंगल मतलब ब्लू नहीं तो ब्लैक बॉल पेन जो रहता है उससे ही आप लोग होमवर्क कंप्लीट करोगे। उसके लिए कोई कलरफुल पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग आज एक गेम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, वो है हैंडबॉल। हैंडबॉल आपको सिर्फ जो होमवर्क मिलता है वही आपको लिखना है। आपको जो होमवर्क में दे रहा हूँ वही आपको लिखना है। आपको सारा जो भी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है। होमवर्क में आपको जितना पूछा गया है उतना है। फॉर एग्जांपल यदि आपको BMI कैलकुलेट करने के लिए पूछा है तो आप सिर्फ BMI कैलकुलेट करोगे, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है।
सेकेंड थिंग, अभी आज मैंने कहा आपको THR, टारगेट हार्ट रेट जो है वो कैलकुलेट करना है, तो आपको टारगेट हार्ट रेट ही कैलकुलेट करना है, आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हैंडबॉल की तरफ। ये जो गेम है इम्पोर्टेंट है, इस गेम के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। हैंडबॉल के बारे में हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। हैंडबॉल जो गेम है, हैंडबॉल हम लोग हमारा सेशन शुरू करने से पहले, हैंडबॉल के ऊपर डिस्कशन करने से पहले, यदि आप में से किसने हैंडबॉल जो गेम है उसके मैचेस देखे हुए या खेले हुए हैं, आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके ओके, इतने स्टूडेंट्स ने हैंडबॉल देखा हुआ है या खेलते हुए खुद खेला है या मैच देखी है। ओके, तो अभी हैंडबॉल जो है एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है। हैंडबॉल इज अ पॉपुलर ओलंपिक स्पोर्ट्स। मैक्स हेजर, a gymnastic teacher, invented the game in Germany in 1917. ये जो गेम है 1917 में जर्मनी में इसको इन्वेंट किया गया है। मैक्स एक जिम्नास्टिक के कोच थे, टीचर थे, उन्होंने ये जो गेम है, ये गेम को बनाया हुआ है। The present form of game which existing rules is the work of Karl, a sports teacher from Berlin. बर्लिन के मिस्टर कार्ल करके जो स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने ये जो नया फॉर्मेट है गेम का, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ किए हैं। द स्पोर्ट्स वाज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक एट म्यूनिच इन 1972। ये जो ओलंपिक में इस गेम को कब इंक्लूड किया गया, तो 1972 में म्यूनिच में जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में इस गेम को इंक्लूड किया गया था। Handball is a team sports in which two teams of 7 players each. हैंडबॉल जो है वो टीम स्पोर्ट्स है, हर टीम के 7 प्लेयर्स इसमें खेलते हैं, और ये गेम खेलने के लिए 2 टीम्स के होना जरूरी है। देखो 7 प्लेयर्स खेलते हैं। 7 प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, तो 6 प्लेयर्स जो रहते हैं वो ऑन फील्ड रहते हैं, 1 जो रहता है वो गोलकीपर रहता है। इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं प्लस 7 सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, तो पूरी जो हैंडबॉल की एक टीम रहती है वो रहती है 14 प्लेयर्स की। पास अ बॉल यूजिंग देयर हैंड्स with the aim of throwing it into the goal of the other team. ये गेम का जो एम है या टारगेट जो है, उसको टारगेट क्या है कि गोल करना, अपोनेंट टीम जो है उनके गोल पोस्ट में, उनके गोल में बॉल को थ्रो करना, इस गेम का एम रहता है। A standard match consists of 2 periods of 30 minutes and the team that score more goals win. ये जो इस गेम की जो स्टैंडर्ड मैच रहती है, इंटरनेशनल मैचेस जो रहते हैं वो रहते हैं 1 आवर के। 1 आवर मतलब कैसा, कंटिन्यू 1 आवर की मैच नहीं रहती है, 30 मिनट्स के 2 हाफ रहते हैं और 10 मिनट्स का हाफ टाइम रहता है। और जो टीम सबसे ज्यादा गोल स्कोर करती है उनको विनर डिक्लेयर किया जाता है। Modern handball is played on a court of 40 by 20 meters with a goal in the middle of each end. ये जो मॉडर्न हैंडबॉल है, मतलब अभी जो करंटली जो हैंडबॉल खेला जाता है वो 40 मीटर्स बाय 20 मीटर्स के कोर्ट में खेला जाता है, और दोनों कोर्ट के एंड के मिडल में गोल पोस्ट फिक्स किया हुआ रहता है जिसमें प्लेयर्स जाके गोल करते हैं। The goals are surrounded by
6 meter zone where only the defending goalkeeper is allowed. जो गोल जोन रहता है 6 मीटर का, दोनों मतलब जो कोर्ट है, कोर्ट के दोनों एंड में 6 मीटर का गोल जोन रहता है। उस गोल जोन में सिर्फ डिफेंडिंग गोलकीपर जो रहता है उसको खड़ा रहना अलाउ रहता है। Goals must be scored by throwing the ball from outside the zone or while diving into it. गोल स्कोर करने के लिए जो अटैकिंग टीम के प्लेयर्स है उनको गोल जोन के बाहर से ही गोल करना रहता है, या वो लोग जंप लेके जब भी एयर में रहते हैं जिसको डाइविंग बोलते हैं, डाइविंग करके भी गोल कर सकते हैं। ये भी आपको जो सामने आपके दिख रहा है वो है हैंडबॉल का कोर्ट। अब इस कोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मैंने कहा था इसके पहले वाले स्लाइड्स में कि 20 मीटर्स बाय 40 मीटर्स का कोर्ट रहता है। देखो यहाँ पे जो लेंथ है ये है 40 मीटर्स और इसका विड्थ जो है वो है 20 मीटर्स। गोल जोन कहा था मैंने, गोल जोन 6 मीटर है। देखो यहाँ पे ये गोल पोस्ट दिख रहा है आपको, ये गोल पोस्ट से ये जो डी दिख रहा है आपको, डी शेप वाला जो एरिया दिख रहा है, 9 मीटर 6 मीटर के ऐसे फिगर्स लिखे हैं। तो ये जो यहाँ से लेके ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो है ये 6 मीटर पे है और यहाँ इसको बोलते हैं गोल जोन। इस जोन में सिर्फ गोलकीपर, डिफेंडिंग टीम का गोलकीपर ही खड़ा रह सकता है, इसके अलावा कोई भी प्लेयर इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है आपको, तो उसको बोलते हैं गोलकीपर लाइन या गोलकीपर स्पॉट। ये क्यों मार्क किया जाता है? तो जब भी पेनल्टी अटैकिंग टीम को पेनल्टी मिलती है, वो पेनल्टी शूट लेने के लिए आते हैं, तो उस वक्त ये डिफेंडिंग टीम का जो गोलकीपर है, ये जो स्पॉट है या ये जो गोलकीपर लाइन है, इसके आगे नहीं आ सकता है, वो यहाँ तक आके खड़ा रह सकता है। उसके बाद में एक यहाँ पे और एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे उसको कहते हैं पेनल्टी मार्क या पेनल्टी लाइन। उसका डिस्टेंस गोल पोस्ट से 7 मीटर पे रहता है। उसके बाद में आपको और एक लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इस लाइन को कहते हैं फ्री थ्रो लाइन। ठीक है, वो रहती है 9 मीटर पे। जो डॉटेड लाइन रहती है वो गोल पोस्ट से 9 मीटर मतलब 9 मीटर के ऊपर मार्क की जाती है और उसको कहते हैं फ्री थ्रो लाइन। उसके बाद में यहाँ पे कोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली और एक लाइन यहाँ पे मार्क है, स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं सेंटर लाइन। सेम अपोजिट साइड के कोर्ट में भी, मतलब जो 2 पार्ट है, तो यहाँ पे भी ये जो है इसको कहते हैं डी जोन या गोल जोन। यहाँ पे भी है गोलकीपर लाइन या गोलकीपर स्पॉट, लाइन, फ्री थ्रो लाइन। उसके बाद में ये जो साइड में है इनको कहते हैं साइड लाइंस, और ये जो एंड में है, दोनों कोर्ट के एंड में है, इनको हम लोग कह सकते हैं आउटर गोल लाइन या एंड लाइन या बेस लाइन। ठीक है, ये हम लोग उनको कह सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेंटर लाइन से दोनों तरफ 4.5 मीटर के ऊपर, यहाँ पे मेरा जहाँ पे कर्सर घूम रहा है वहां पे आपको एक छोटे छोटे 2 लाइन मार्क किए हुए दिख रहे हैं, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन जोन या सब्स्टिट्यूशन लाइन। तो यही से प्लेयर्स यदि आपको सब्स्टिट्यूट करने तो आपको यही से प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप किधर से भी प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो वॉयलेशन मतलब वो फाउल माना जाता है। अभी हम लोग गोल पोस्ट के बारे में, गोल पोस्ट कैसे रहता है हैंडबॉल का, उसके बारे में जानेंगे। गोल पोस्ट जो रहता है वो 3 मीटर्स, उसका जो लेंथ जो रहता है, विड कितनी उसका लेंथ रहता है, 3 मीटर्स रहता है। उसका जो डीप रहता है वो 0.8 मीटर का रहता है और हाइट जो रहती है वो रहती है 2 मीटर्स। मैं गोल पोस्ट के बारे में फिर से बताऊंगा आपको। 3 मीटर्स जो है, 3 मीटर्स लंबाई रहती है, जो डीप रहता है 0.8 मीटर और उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर्स रहती है। ओके, यहां तक यदि किसी को डाउट है एक मिनट। यहाँ तक यदि हैंडबॉल के अभी तक जितने स्लाइड्स हुए वहां तक यदि किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो।
ओके, शायद किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग यही तक कंप्लीट करने वाले हैं। आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की स्लाइड्स, मतलब हैंडबॉल की जो स्किल्स है एंड रूल्स है, उसके बारे में हम लोग आने वाले नेक्स्ट सेशन में जानने वाले हैं। तो आपको आज का मैंने होमवर्क दे दिया है। आपको THR, टारगेट हार्ट रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। फंक्शनल हार्ट रेट जो है FHR, वो भी आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट सेशन के पहले आपको वो कैलकुलेट करना है। मैंने जैसे पहले वाले लेक्चर्स में भी कहा था, आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर ये सारी चीज कंप्लीट, होमवर्क जो देता हूँ मैं वो आपको कंप्लीट करना है और फाइल में फाइल करके रखना है। प्रॉपर डेट वाइज आपको ये सारी चीजें फाइल करके रखनी है। और होमवर्क कंप्लीट करने के लिए आपको ब्लू या ब्लैक पेन जो है उसका ही यूज करना है, बॉल पेन से ही लिखना है। कोई कलरफुल पेन जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। अयान बोलो, आपको कुछ डाउट है? Sir, means we have to make two files in which one file we have to make games one file and आपको स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ सिंगल फाइल बनानी है जिसमें आपको सारे होमवर्क अटैच करके रखने हैं या फाइल करके रखने हैं। सर, और वो जो आप इंफॉर्मेशन देते हो वो भी हम लोग को उसमें ही लिखना है? आपको मैं जो सिर्फ होमवर्क देता हूँ वही आपको लिखना है। आपको बाकी कोई भी चीज फाइल में लिख के नहीं फाइल करनी है। सिर्फ मैं जो होमवर्क बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। और सर वो जो गेम्स है वो कौन से फाइल में लिखने हैं? गेम्स रहने दो या जो भी कुछ रहने दो, गेम्स के बारे में मैंने अब तक आपको एक भी होमवर्क नहीं दिया है। मैं आपको सिर्फ होमवर्क देने वाला हूँ, वो वही होमवर्क आपको सिर्फ फाइल अप करके रखना है। ठीक है? हाँ सर। हेमाक्षी बोलो, आपको क्या डाउट है? सर हमें फॉर्मूलाज भी लिखने ना फाइल सॉरी, में।